and the chapter is Browning version. Browning version actually it is not entirely a chapter, but it is an excerpt. ये एक book में से लिया गया एक excerpt है. This is, you can say, this is taken from Browning version. And what you are going to study is only one part of the play. And this particular part shows what does a teenager think about their teachers. मतलब वो टीचर्स को किस साइड से देखते हैं, मतलब फॉर देम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल टीचर. This is about, the play is set in a school where a child is there. He has come to do some extra work. There he meets another teacher, and there is a conversation which is going on. The child is actually afraid of the teacher, but yet he mimics the teacher. Maybe this is a chapter when I study, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे और टीचर के बीच में एक समझौता होना चाहिए, the communication that needs to be. If we want the child to respect us, that lag जो होता है बीच में, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि the teachers may not be that much, they may try to give their best. कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो अपना बेस्ट नहीं देना चाहता होगा. Yet there are areas जहां टीचर्स भी लैग कर जाती. That may be communication, that may be, ego, that may be some अपनी तरफ से उनका कुछ हेजिटेशन. ये जो पूरा प्ले है ये एकदम अलग है. मैंने ये पूरा प्ले पढ़ा हुआ है. दिस वाज देयर इन आवर एमए ब्राउनिंग वर्जन. इट्स अ वेरी लॉन्ग. एक्चुअल में इसमें जो दिखाया है, जो दिया है, वो बहुत 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 छोटा सा एक सेटिंग है. The entire play is very, very long. I'll tell you. When we see this play, actually ये play जो है, it is about the main character Crocker Harris, the teacher who is disciplined. In fact आज ही एक ऐसा, मतलब कि example, एक instance हुआ था that some of the students told me that they had got the economics paper even before the exam. And they were very happy कि जो teacher है, he is, मतलब कि he or she is very nice. उन्होंने उनको जो है
टाइम से पहले, पेपर से पहले they had given the paper. And when it comes to teachers who are disciplined, excuse me, so what happens is, वो जो teachers, those who want to make sure कि उनके बच्चे disciplined हैं, they are not flaunting the norms, sometimes these teachers aren't given any respect. और आपके सामने मैं खुद हूँ, सामने हूँ, and I don't feel shy or ashamed. Students, मेरे पास भारी भरकम में नहीं है, आपको भी पता है. If you go to your other classes, you know how many students are there. Because I don't believe that I should teach anyone anything wrong. यहाँ वही वाला चैप्टर है that the teacher Crocker Harris was very strict. In fact, वो इतने अपने उसूलों के पक्के थे. He was so principled. On the other hand, he had, मतलब उनकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम थी. The students never liked him. For them, he was very disciplined. And एक टाइम ऐसा आता है जब he has to leave the school. But वही बच्चा जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, the same child prepares a poem for his teacher. वही जो बच्चा जो कि पहले कहता है कि the teacher is too disciplined, that मतलब कि he doesn't like, वही बच्चा एंड में अपनी टीचर के लिए एक पोएम भी लिखता है. So in another word, it is about our perceptions about our teachers. Students को लगता है teacher should be more friendly. Yes, it is very important. If I look at my teachers, I never had the courage to talk to her. और मुझे ऐसा लगता कि वैसा नहीं होना चाहिए. The child should be able to express his problems to the teacher. That is the best way to communicate. I'm not saying the child should be very open, but he or she should be able to communicate. उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. And as a teacher, we need to look into the child's mind, not that ki I am a teacher. We are teachers, but students make us teachers. तो उनको भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. They should also come out. I remember I never had any interactions with my teachers because my teachers used to differentiate us on the basis of our colors, not on the basis of our studies. हम चाहे कुछ भी हो, जब उनको पता है जब टीचर्स को की जरूरत पड़ेगी तो they will come and do the work. And I believe that should not be the one, neither on the basis of color, not on the basis of any studies. ठीक है, कोई बच्चा टॉपर होता है, कोई बच्चा नहीं करता, but that doesn't mean that जो बच्चा नहीं करता वो जिंदगी में कुछ नहीं करता. There are examples where the students who have done nothing have excelled in their life. So success is not measured with the number that we are giving to the students. This is a conversation between Frank and Taplow. Taplow जो है, he is a young student of around 16 years. आपकी जितना होगा. And his teacher Crocker Harris had given him some extra work because the previous week he was absent for one day. वो बीमार था and he had taken holiday. और इसीलिए उसके टीचर ने उसको एक्स्ट्रा काम के लिए घर बुलाया था. जब वो घर पहुंचता है, क्योंकि उसके एग्जाम्स थे और एग्जाम्स में उसको डर था कि उसके इस एब्सेंस का
उसके टीचर उसको नेगेटिव मार्किंग देगा एंड ही मे बी फेल्ड. सो ही हैज कम टू रिमूव दैट. अपना वो फेलियर नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो वहां पहुंचा हुआ है. एट दैट पर्टिकुलर टाइम वहां उसको मिलता है एक और टीचर, दैट इज फ्रैंक. एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, फ्रैंक जो है थोड़ा फ्रैंक है. He is light-minded professor, light-minded teacher. So वो उसे पूछता है कि आज तो सबसे लास्ट डे है, आज तो बच्चे सब एंजॉय कर रहे होंगे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. तो फ्रैंक मतलब ये बताता है दैट ही हैज कम हियर फॉर दिस पर्पस. तो दे हैव अ कन्वर्सेशन जहां पर एक दो बार क्रॉकर हैरिस का टैप्लो मजाक भी उड़ाता है. शुरू में तो फ्रैंक जो है वो मना करता है, मतलब ही डजंट लाइक अ चाइल्ड टू इमिटेट अ टीचर. बट लेटर ऑन वो उसको जो है उसके साथ मजे लेना शुरू कर देता है. इनफैक्ट ही आस्क कि बताओ दोबारा से टीचर ने क्या बोला था. एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन क्रॉकर हैरिस की जो वाइफ होती है मिली, वो वहां पहुंच जाती है. शी रीचेज ओवर देयर एंड शी ओवरहियर्स देयर कन्वर्सेशन. वो इनकी कन्वर्सेशन को ओवरहियर कर लेती है. अब उसे बुरा लगता है, बट वो हैंडल कर लेती है सिचुएशन को बाय आस्किंग टैप्लो टू ब्रिंग सम मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट. जब टैप्लो कहता है कि मैम अगर सर आ गए तो कहती मैं हैंडल कर लूंगी. एंड thus she gets rid of this boy and tries to interpret. So this is the chapter, the play, Browning version. There are some situations where Taplow has crossed his limit. He has tried to imitate, but through this poem, through this play, the writer doesn't want to diminish teachers. He wants to tell that how a teenager looks upon his teacher. As I said कि एंड में जब ये चैप्टर ये मतलब कि पूरा प्ले खत्म होता है रियल मतलब इन द रियल बुक, तो दिस इज यही लड़का होता है जो अपने टीचर के लिए पोएम भी लिखता है. देन ही रियलाइजेस दैट द टीचर वाज ओल्ड, so he had the old school. He was not as modern as other teachers were, and due to all these circumstances he had to leave the school. उसको बुरा लगता है and he writes a poem. This is about that, right? I have already shared the chapter on your screen. It's a very small chapter. It will be completed today itself. This is an excerpt from the Browning version. As I said that the Browning version is a play, complete play. उसमें से ये एक छोटा सा टुकड़ा है. The reference within the play of Browning translation of Greek tragedy Agamemnon. ये Agamemnon मैं आपको बाद में बताऊंगी. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. दोनों teachers हैं. Master's here is for the teacher. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. But the latter means Crocker Harris अभी आए नहीं है. And Frank finds Taplow waiting. जब Frank वहां पहुंचता है तो Taplow वहां होता है. So now Frank starts a conversation. Do I know you? Taplow कहता no. कहता what's your name? Taplow. Oh no, I don't. You are not a scientist, I gather. Now, what is the meaning of scientist? Scientist का मतलब science का student. Here, the scientist is not referred for the scientist. Here, it means the children who take science. In many of the foreign countries, after मतलब कि 11th standard जैसे आप लोग हो,
तो आप लोग जैसे साइंस लिया, आप लोगों में से सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस, सम आर फ्रॉम ह्यूमैनिटी, सम आर फ्रॉम, तो उसी तरीके से वहां पर दे डोंट हैव दिस, उनके भी पब्लिक एग्जाम होते हैं बट नॉट इन द सेम क्राइटेरिया जैसा हमारा होता है। सो दे साइंस भी अगर वो लोग लेते हैं तो जैसे आप लोगों को सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों, वेदर यू लाइक और नॉट। उनको ऐसा नहीं है, दे हैव स्पेसिफाइड। तो अब वो पूछ रहा है कि तुम साइंस को, कहता है नो, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, मींस ही हैज येट नॉट कंप्लीटेड हिज हाई स्कूल। I can't specialize until next term. That is to say, if I've got my remove all right. यहाँ पे remove मतलब वो जो उसको माइनस पॉइंट मिला है उसके ग्रेड में, because he was absent for 1 day, that is why. तो अब वो उससे पूछता है कि डोंट यू नो इफ यू गॉट योर रिमूव, तुम्हें पता नहीं लगा तुम्हारा रिजल्ट? टैप्लो कहता है नो सर, क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस रिजल्ट्स लाइक अदर मास्टर्स। आपको भी पता है स्कूल्स में नॉर्मली क्या होता है, when the teachers prepare the results, most of the time the girls are involved, तो उनको पता तो लग ही जाता कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो फ्रैंक कहता व्हाई नॉट, कहता वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर, वो थोड़ा हेट्रेड के साथ बात कर रहा है। आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स, फॉर्म मीन्स जो स्कूल का रिजल्ट होता है, शुड, हम लोग जैसे क्लास बोलते हैं, क्लास 1 क्लास 2 दे स्पीक इन फॉर्म, should only be announced by the headmaster on the last day of term. Yes, but else, who else pays attention except Mr. Crocker Harris? कहता और कोई थोड़ी ध्यान करता, सब तो बता ही देते हैं। आई डोंट, आई एडमिट, मैं जानता हूं मैं नहीं करता, बट दैट इज नॉट नो क्राइटेरियन। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, है ना? यस सर। सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? मीन्स अगर तुम्हारा रिमूव हो गया तो आगे तुम क्या पढ़ोगे? ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स। तो फ्रैंक दुखी होकर कहता है यस, वी गेट ऑल स्लैकर्स, सारे बेवकूफ हमारे पास आते हैं। स्लैकर होता है जो बुद्धू होते हैं। इन आवर कंट्री द सिचुएशन इज ऑपोजिट। Here people think that if the child is getting 80 plus, then he or she should take science. But humanities हम लोग लेते हैं तब जब हमारे को लगता है हमारे मार्क्स कम है। In other countries it is opposite. They don't believe in that science, commerce or arts. वो believe करते हैं in your interest. They are not on the marks. In fact वहां पर humanities जो literature होता है, it is taken by those who are very very intelligent. क्योंकि लिटरेचर को पढ़ना जो होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट, दे हैव टू, हमारे यहाँ जैसे वो दे वी आर नॉट, हम लोग रॉट लर्निंग पर करते हैं, बट वहां पर क्या होता है, दे हैव टू गो टू द म्यूजियम्स, दे हैव टू विजिट दोज एरियाज, उनका लिटरेचर थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, लेकिन टैप्लो को गुस्सा आ जाता क्योंकि उसे बोला जाता है कि हमें तो बुद्धू मिलते हैं। वो कहता है नहीं सर, मैं तो, मुझे साइंस में बहुत, आर यू, आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। अच्छा तुम्हें साइंस अच्छा लगता है, मुझे तो साइंस नहीं अच्छा लगता है। तो कहता है वेल एनी वे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। उसके हाथ में एक बुक होती है, कहता है इस मक मतलब समथिंग बैड, अगली, कहता है इससे तो अच्छा ही है। कहता है व्हाट इज दिस मक? तो कहता है एशिलिस, मतलब इट्स रिटन बाय एशिलिस द एगमेनन। नाउ ये जो एगमेनन है, it's a Greek tragedy actually. It's about a wife who murders her husband. बहुत इंटरेस्टिंग है and it is one of the interesting Greek literature. तो कहता है कि एंड तुम्हें लगता है कि एगमोनन मतलब कि इतनी बड़ी जो लिटरेचर है जिसको बहुत तारीफ करते, तुम उसको मक बोलते हो? तो कहता है वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक,
कहानी अच्छी है, exactly I suppose in a way. It's rather a good plot. Really, a wife murdering her husband and all that. I only meant the way it is taught to us. Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. तो कहता है कि सर उसे जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है ना वो गलत है। एक तो ग्रीक के वर्ड्स मिले हुए, और अगर हमने एक बार भी गलत किया तो सर हमें 50 बार लिखने को बोलते। तो टापलो को कहता है यू साउंड अ लिटिल बिटर, कितना कड़वाहट है। वो कहता है यस सर। कैप्टन, तुम्हें मतलब कि बुलाया है यहाँ पर कैप्टन ए। तो कहता नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, मतलब सर मेरे को फेल नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया हुआ है। एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल? Yes, sir, and I might be playing golf. You had think he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather. So वो कहता हाँ सर, मुझे तो एक्चुअल में आज एंजॉय करना चाहिए था। टीचर बाकी होता तो वो कहता कि चलो कल से तो ये बच्चा जा रहा है तो मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन नहीं सर, मैं लास्ट वीक बीमार था इसलिए आज मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। तो कहता बैड लक, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम आज अच्छे बच्चे बने तो कल तुम्हारा हो सकता है रिमूव हो जाए, मतलब तुम पास हो जाओ, तुम्हारे जो माइनस लगे। वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स। यहाँ पर देखो उसकी वर्ड्स, they just wouldn't dare not to give a chap remove after his taking extra work. सर बाकी टीचर्स है ना, वो ऐसा कर सकते हैं, एक बच्चे से एक्स्ट्रा काम भी करवा लिया, फिर वो लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग पास कर देंगे। बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक। नाउ ही इज, मतलब अपनी टीचर का जो है वो नेम ले रहा है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट if he had given me a remove, and do you know what he said sir? सर मैंने कल पूछा था कि सर आपने मुझे फेल किया क्या, आपको पता है उसने क्या बोला? तो वो इमिटेट करता है बिल्कुल। माई डियर टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। Do you know, sir? I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. I mean, the man is hardly human. कहता सर मैंने कल बोला तो सर ने बोला बेटा टैपलो, मैंने ना तुमको 1 मार्क कम दिए ना ज्यादा, जितना चाहिए उतना ही दिया, लेकिन सर मैं पक्का कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे कम ही दिया होगा, ज्यादा नहीं दिया होगा, वो इंसान थोड़ी है। फिर वो मतलब उसको थोड़ा समझ आता, कहता सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, सर मैं ज्यादा बोल पड़ा? तो यस सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, तो मैं थोड़ा कैरी एविडेंटली। फिर वो टैपलो को अवॉइड करने के लिए बोलता है, फिर वो बुलाता है, कहता है व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड, रिपीट इट, जरा दोबारा रिपीट करना। अब फ्रैंक जो है ही आल्सो टेक्स, दो ही डजंट लाइक, येट थोड़ा वो मजे लेते हैं। फिर वो इमिटेट करके फिर वही चीज बोलता है, माई डियर टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। फ्रैंक बोलता है नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, बट तुम सर के जैसे नहीं बोल रहे हो, रीड योर नाइस एशलिस एंड बी क्वाइट, अब चुप रहता है। तो वो कहता है एशलिस, लुक व्हाट टाइम डिड क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, कितने बजे बुलाया था सर ने? 6:30। वेल ही इज 10 minutes लेट, व्हाई डोंट यू कट, मतलब तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? व्हाई डोंट यू कट मीन्स व्हाई डोंट यू गो अवे, you could still play golf before lockup. Oh no, I couldn't cut. Cut the crock? I shouldn't think it has ever been done in the whole time he has been here. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. सर मैं क्रॉकर हैरिस को कट करूं, क्रॉक को? सर कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता हूं जब तक वो यहाँ पर है, भगवान ही जाने वो क्या कर दे, मेरे तो घर के पीछे, मेरे तो शायद घर तक पहुंच जाए वो। तो फ्रैंक कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, सबसे ज्यादा आता है। आई मस्ट एडमिट आई एनवाई हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव यू बॉयज इन द फॉर्म। मुझे तो सर से बहुत जलन हो रही है, सबका कितना तुम लोगों पर जो है इफेक्ट है। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग?
क्यों भाई, मारते पीटते हैं क्या? Good Lord, no, he is not a sadist like one or two of the other. मतलब कहता, I beg your pardon. कहता सर, a sadist. Now who is a sadist? Sadist होता है जो दूसरों को तकलीफ देकर खुशी लगता है, मतलब दूसरों को चोट लगती है तो उसे अच्छा लगता है, दूसरों को परेशान करके उसे अच्छा लगता है. Sir, a sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. नहीं नहीं नहीं, indeed, but I think you went on to say some other masters. तुम कुछ और बोल रहे थे ना? Well, of course they are, sir. I won't mention names, but you know them as well as I do. Sir, आपको पता है स्कूल में ऐसे टीचर्स भी हैं. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing, but sir, you are different. अब वो थोड़ा फ्लैक्टरी करता अपने टीचर के साथ. You are young, very comparatively anyway. You are science. You must know what sadism is. कहते सर आपकी बात अलग है. सर आप यंग हो, आप हमारी बातें समझते हो, आप साइंस के भी हो. गुड लॉर्ड, फ्रैंक को गुस्सा आता होगा, व्हाट आर स्कूल्स आर कमिंग टू. कैसे बच्चे हैं आजकल? व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, मतलब ऐसे बच्चे. Anyway, the croc isn't a sadist. That's what I'm saying. He wouldn't be so frightening if he were. Because at least it would show he had some feelings. सर अगर sadist होते ना तो भी हमें समझ आता कि उसमें कुछ feelings है. गुस्सा तो है सर, बट सर उनके अंदर तो गुस्सा भी नहीं है. He is all shriveled up like a nut. सर वो अपनी जिंदगी, वो ना अपने आप में जो है एक नट की तरह उलझे हुए हैं. He seems to hate people to like him. सर उन्हें नहीं पसंद है कि लोग उन्हें पसंद करें. उनके अंदर तो इंसान, मतलब कि he doesn't have any emotion. I don't know any other master who doesn't like. कहता सर कोई और टीचर जो है ऐसा नहीं करेगा. And I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. और कोई ऐसा बच्चा भी नहीं होगा जो अपने टीचर का अपने मतलब के लिए करे. सर वेल इट इज नेचुरल सर, बट विद द क्रॉक, वो कहता है तमीज से बात करो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस. Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it. And sometimes I think he sees him that seems to shrivel him up more. सर इतना होने के बावजूद, सर इतने, मतलब कि सर को बिल्कुल नहीं पसंद है कि उन्हें कोई पसंद करे. वो अपने आप में रहते हैं. येट मुझे वो बहुत पसंद है. तो फ्रैंक कहता, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग. अब तुम तो थोड़ा ना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो. नो सर, आई एम नॉट. सर नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ. इन फॉर्म सर, एक दिन क्लास के अंदर, द अदर डे ही मेड वन ऑफ द हिज क्लासिकल जोक्स. क्लासिकल मतलब नॉर्मली वो अपने ओल्ड पुराने तरीके के जोक्स करते रहते थे पढ़ाते पढ़ाते. ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड. कोई हंसा ही नहीं. बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, माई सेल्फ इंक्लूडेड. मुझे भी नहीं आया था सर. स्टिल I knew he hadn't meant it. He had meant it as funny, so I laughed. तो कहता है कि सर लेकिन मुझे जो है बुरा लग रहा था टीचर के लिए. मुझे पता था कि सर हमें हंसाना चाहते थे तो मैं हंस पड़ा, सिर्फ पोलाइटनेस की वजह से. आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, एंड bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke is, but suppose I make it, now you laugh, sir. कहता सर सोचो, मुझे जोक तो याद नहीं, आप सोचो मैंने जोक किया और आप हंस रहे बिना मतलब की. मतलब मुझे समझ नहीं आया था, मैं हंस पड़ा. कहते और सर ने मुझे बोला, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक टैप्लो, आई नोटिस्ड. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you are readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. कहता जैसे ही मैं हंसा, सर ने मुझे बोला, टैप्लो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हें लैटिन अच्छे से समझ आने लग गया है, और पूरी क्लास को नहीं समझ आया लेकिन तुम्हें आ गया. अब तुम ये जो मैंने जो जोक बोला था, प्लीज उसको अपने फ्रेंड्स को भी समझाओगे ताकि सब लोग हंसे. इन द मीनवाइल द डोर upright is pushed upon and Millie Crocker Harris enters. She is a thin woman in her late 30s.
rather more smartly dressed than a general run of schoolmasters' wives. पहले ज़माने में schoolmasters were considered as one of the poorest, people. तो इसीलिए वो कहते हैं मतलब कि लेकिन वो स्कूल मास्टर की वाइफ की जैसी नहीं लग रही थी. शी वॉज लुकिंग स्मार्ट. शी इज वेयरिंग अ केप ड्रेस and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Taplo and Frank. मतलब वो ओवर हेयर कर रही होती है उनकी बात. It's a few seconds before they notice. उन दोनों ने ध्यान नहीं किया होता है. अब फ्रैंक कहता है come along. चलो Taplo, do not be so selfish as to keep a good joke. Tell the others. और दोनों जो है हंसा. चलो चलो बताओ ना क्या था. Oh Lord. Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. फ्रैंक को थोड़ी तसल्ली हो जाती है. वो कहता ओ हेलो. वो एक्सप्रेशन के बिना कहती है हेलो. अब टैप्लो को डर लग जाता है. फ्रैंटिकली मतलब वो डर जाता है. डू यू थिंक शी हर्ड? आई थिंक शी डिड. शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम. और फ्रैंक उसको डराने के लिए कहता हाँ. If she did and she tells, there goes my remove. हो गया मेरा तो कबाड़ा. Nonsense. Millie takes the basket from the sideboard and moves above the table and puts the basket on it. फिर वो उसे पूछती है, waiting for my husband? बेटा yes. He is at the bursars and might be there quite a time. If I were you, I would go. अभी तो सर बर्सर्स गए हुए हैं और अभी तो उनको थोड़ा टाइम भी लगेगा. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती. तो टैप्लो कहता ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम. लेकिन सर ने तो बोला था कि मुझे आना है. ओके वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक. एक काम करो 15-20 मिनट के लिए कहीं चले जाओ फिर आ जाना. सपोज ही गेट्स हियर बिफोर मी. लेकिन अगर सर उससे पहले आ गए तो आई टेक द ब्लेम. आई टेक द ब्लेम मीन्स आई हैंडल इट. आई टेल यू व्हाट, तुम एक काम करो. You can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it made up. Get it made up matlab get the medicines. Here it is, get the medicines. All right, Mrs. Crocker Harris. He crosses towards the door upright. So, this is the chapter Browning version. Some of the questions, for example, comment on the attitude shown by Taplo towards Crocker Harris. Does Frank seem to encourage? Yes, at times he encouraged. जैसे वो उसे कहता है कि दोबारा से बोलकर दिखाओ. At times he was also feeling bad. And then what do you gather about Crocker Harris from the play? This is about the character sketch, you can say. Though we have not seen Crocker Harris anywhere, just the conversation and that too the dialogues that Taplo has said about Crocker Harris, हमें पता लगता है that Crocker Harris was a strict teacher. He was in his mid-40s and maybe a senior teacher, or he is not like other teachers who are free to their children, give the results beforehand. He follows the school's forms, rules and regulations completely. वो मतलब कि जो स्कूल का रेगुलेशंस है उनको पूरी तरीके से फॉलो करता है. एंड ऑन द अदर हैंड he also tries to keep a pace with his children. जैसे कि वो जोक मारने की कोशिश करते हैं. Yet he is not able to connect to his students. And when we talk about Taplo's attitude, we can say that he, as a teenager, एक बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता अपने टीचर से? That the teacher should be free to him or her. The teacher should not unnecessarily nudge upon him. उसको जो है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए. At times he has also shown that he had a respectful behavior towards Crocker Harris. जैसे कि वो बताता है कि टीचर हंसाने की कोशिश कर रहा था, and when he found that nobody was laughing तो अपने टीचर की उसने इज्जत रखी. But overall,
Taplow had a very negative approach towards Crocker Harris. Then here the second question is that the manner you adopt when you talk about a teacher to other teachers. It's really, an application based question. How do we talk about one teacher to another? I can, cite examples, and certain times I really feel कि अगर कोई मेरे लिए किसी और टीचर के लिए मुझे ऐसा बोलता होगा तो हो सकता है मेरे लिए भी किसी और टीचर को बोलता होगा. एंड आई ऑलवेज ट्राई टू, इनफैक्ट जो बच्चे बोलते हैं ना वो फिर बोलते भी हैं कि मैम हमें पता है कि यू डोंट लाइक इफ वी टॉक अबाउट अ टीचर इन दिस मैनर. जैसे आज ही हुआ था तो दे वर टेलिंग मी कि मैम बट वी नो दैट आपको बुरा लगेगा इफ वी टॉक. तो आई से कि ओके, एवरी टीचर हैज हिज और हर ओन एरियाज, हिज और हर ओन वे. हो सकता है किसी में मैं अच्छी हूँ लेकिन किसी बहुत में हो सकता है वो मेरे से बेटर हो सकता है कि मैं बहुत चीजों में कम हूँ. बट रिस्पेक्ट अ टीचर फॉर द थिंग दैट शी और ही इज गिविंग टू यू. It's okay if I say today I had teachers who differentiated, but आज अगर मैं हूँ एक teacher to the entire, I can say, credit goes to them only. They taught us in that way. Their subject knowledge was so nice. They helped us to explore the things so interestingly. Perhaps that is the way. ठीक है, हर टीचर का कोई टीचर किसी के साथ में ज्यादा अच्छा रहता है, किसी के साथ बुरा रहता है. And it happens in all the schools, in all the class. You have a favorite child, you have a favorite teacher. But on the whole, as I said, the chapter is completely written from the perspective of a childhood, of a teenager. तो बच्चों का यही रहता है कि they want to involve freely. On the other hand, it is also very, very true that a child would also love a teacher who is disciplined. जैसे इसमें भी टैप्लो जो है, he loves his teacher for the discipline he is having. जब वो उससे पूछते हैं कि is he a sadist, वो कहता no. He doesn't like to beat the students, give pain to the students without any reason. बस वो अपने आप में रहना पसंद करते. He doesn't like people to come to him. He doesn't indulge himself, but he is not a sadist. That particular जो line है, that shows कि he also loved a teacher to be disciplined. In fact, when he has been told कि तुम्हें आना है, you have been given a remove, so he hasn't argued, but he has come over there. And this is also very true that despite all these negative points that students want the teachers, but yes, definitely they also want the teachers should be disciplined. Because unless and until a teacher isn't disciplined, a teacher can never impart education to others. We may be a human, but at the same time, we are role models to our children. अगर हम बच्चों को सिखाएंगे that you can cheat, तो then we are not role models. Then we are only the puppets that we see on the TV. टीवी में एक हीरो होता है, वो क्या करता है, वो ऑलरेडी एक हीरो की नकल करके कहता है कि मैं हीरो हूं, तो हम भी वही बनेंगे. वी कैन नॉट बी अ रियल हीरो टू आवर स्टूडेंट्स. एंड पर्टिकुलरली अ टीचर लाइक मी, आई नो, आई एम पर्सनली, मुझे बहुत लगता है कि if I want my students, my children, my family to be disciplined, first of all, it should apply to me. It is said, preach, मतलब कि practice what you preach. अगर आप चाहते हो आपके बच्चे ऐसे बने तो आप भी ऐसा रहो. Students love or learn with practice, not by seeing. That is a chapter Browning version. And as I said that this is only an excerpt. इसके जो आगे पीछे है ना, if you read the entire book, you will find कि ये वाला जो
बीच का जो हिस्सा नहीं, तो इसमें रेलेवेंस था ही नहीं. This is only a conversation between a teacher and a child. The entire actually जो chapter जो ये मतलब कि play है, it is revolving around Crocker Harris, how he has to deal, how his wife uh, cheats him, how he leaves the school, how the children's attitude towards him changes. ये पूरा जो है उसके ऊपर है. And this is only an excerpt.